So hello all, I welcome you all in our next video of Prayag Public School, and this video is for class 9th, right? English literature, and today we are going through the same chapter, that is lesson 4, In the Kingdom of Fools, which is a part of movements, right? So if you remember in our last video we have started with this story, right? And we have studied, or what we have studied up till now, that the story is all about a king and his ministers, right? Who changed all the things, all the human activities in their kingdom, right? Human activities means they changed day into night and night into day. Then they told or asked everybody, every single person who was living in their kingdom, to follow uh, their own routine, right? Their own routine means the routine or the rules or regulation that was set by the king and the ministers, right? Where other human being used to sleep in the daytime, right? And they were doing their farming business or their selling or purchasing business and other businesses too in the night time, right? And we have also studied that in this kingdom, uh, every single thing, whether it was eatable items, or it was clothing item, or it was any item, every single item was selling at one single currency, right? That is, whatever anyone is going to buy or was going to buy, every single thing was at the same currency, right? Nobody was paying less or nobody was paying more, right? So these are the things that we have gone through while reading this, or while studying this particular story, right? So let's see what is going to happen in the story later on, right? So let's proceed further, class. When the merchant arrived, the king questioned him, "What's your name?" "Such and such, your highness," right? और आपको ये भी पता होगा स्टोरी में कि एक बर्गलर, एक जो चोर होता है, वो चोरी करके एक घर से निकलता रहता है, तो वो दीवार गिर जाती है, और इस दीवार के गिरने की वजह से जो उस चोर का भाई होता है वो इस किंग के पास जाता है और पेमेंट की मांग करता है। पेमेंट मतलब जो मुआवजा होता है उसके लिए कहता है, ठीक है? और पर इसके लिए, इसके पीछे किंग क्या कहता है कि इसके पीछे जो गिल्टी पर्सन है उसको हम सज़ा देंगे, और इस वजह से मर्चेंट को बुलाया जाता है। सो व्हेन द मर्चेंट अराइव्ड, द किंग क्वेश्चनड हिम। अब किंग क्वेश्चन क्या करता है मर्चेंट से? मर्चेंट मीन्स द बिजनेस पर्सन, राइट? व्हाट्स योर नेम? तुम्हारा नाम क्या है? सच एंड सच, योर हाइनेस। अब वो बोलता है मेरा ये नाम है। Were you at home when the dead man burgled your house? Burgled means theft, मतलब चोरी करना। सो जो किंग होता है वो उससे पूछता है कि क्या तुम घर पे थे जब इस जो इंसान मर गया है, जब उसने चोरी की तुम्हारे घर में? Yes, my lord. He broke in and the wall was weak. It fell on him. अब वो बोलता है कि हाँ हाँ, मैं घर में ही था, और वो मुझे पता चला कि उसने मेरे दीवार में छेद किया, और फिर उसी छेद से वो अंदर चला गया, और क्योंकि दीवार बहुत कमज़ोर थी तो इसलिए उसके ऊपर गिर गई और वो मर गया। द अक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी, राइट? अब जो अक्यूज्ड है, अक्यूज्ड मतलब जो ब्लेम पर्सन है, जिसको ब्लेम किया जा रहा है, वो मर्चेंट, वो अपनी गिल्टी मान लेता है, मतलब अपनी जो रॉन्ग डूइंग है, मतलब जो अपना गुनाह है वो कबूल कर लेता है। यू योर वॉल किल्ड दिस मैन्स ब्रदर, राइट? अब वो किंग बोलता है कि तुम्हारी जो दीवार है उसकी वजह से इस आदमी का भाई मर गया। यू हैव मर्डर्ड अ मैन, वी हैव टू पनिश यू। और वो राजा आगे बोलता है, जो किंग है वो आगे बोलता है कि तुमने एक आदमी को, और ये मान सकते हैं हम कि तुम्हारी वॉल से, मतलब तुम्हारी दीवार गिरने की वजह से वो मर गया है, इस वजह से इसका मतलब है कि तुमने उसे मारा है और तुम्हें हम पनिश करेंगे। लॉर्ड, said the helpless merchant, right? Now he was a helpless merchant. Why? Because he was standing in front of the king of that particular kingdom, right? So he was helpless. There was no one to help him out. I didn't put up the wall. It's really the fault of the man who built the wall. He didn't build it right. You should punish him, right? सो वो कहता है कि क्योंकि वो जो मर्चेंट है बहुत हेल्पलेस रहता है, कोई उसके हेल्प के लिए आसपास नहीं रहता है, तो वो बोलता है कि
मैंने तो दीवार नहीं बनाई ना, और ये दीवार उस इंसान की फ़ॉल्ट है जिसने ये दीवार बनाई है। तो और वो इंसान इस दीवार को सही से बना भी नहीं पाया, इसलिए आप मुझे ना पनिश करके आप उसे पनिश करिए। हु इज़ दैट माई लॉर्ड, दिस वॉल वॉज बिल्ड बाय इन माई फादर्स टाइम। अब वो राजा बोलता है कि कौन है वो जो जिसने तुम्हारे घर की ये दीवार, इस दीवार को बनाया था। अब वो कहता है कि कौन, मर्चेंट बोलता है माई लॉर्ड दिस वॉल वॉज बिल्ट इन माई फादर्स टाइम। अब वो मर्चेंट कहता है कि ये दीवार मेरे फादर के टाइम पे बनी थी या बनाई गई थी। आई नो द मैन, ही इज़ एन ओल्ड मैन नाउ, ही लिव्स नियर बाय। अब वो बोलता है वो मर्चेंट कि मैं उस आदमी को जानता हूँ, हालांकि वो अब बहुत बूढ़ा हो गया है, बट वो यहीं आसपास ही रहता है। द किंग सेंट आउट मैसेंजर्स टू ब्रिंग इन द ब्रिक लेयर, राइट, हु हैड बिल्ड द वॉल। अब जो किंग है उसने अपने मैसेंजर मतलब सोल्जर्स को भेज देता है, किसको लाने के लिए, उस ब्रिक लेयर को, मतलब वो दीवार बनाने वाले पर्सन को लाने के लिए बोल देता है, जो कि अब क्या हो चुका है, बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो चुका है। दे ब्रॉट हिम टाइड हैंड एंड फूड, और वो सोल्जर्स जो हैं, जो किंग के सोल्जर्स होते हैं, वो उसको लाते हैं किस तरीके से, उसके हाथ पैर बांध के उसको किंग के सामने ले आते हैं। लेट प्रोसीड फर्दर क्लास। यू देयर, डिड यू बिल्ड दिस मैन्स वॉल इन हिज फादर्स टाइम? येस माई लॉर्ड आई डिड। अब वो क्वेश्चन कौन कर रहा है, ये किंग उससे पूछता है कि क्या तुम ही हो वो इंसान जिसने इसके फादर के टाइम में, इस मर्चेंट के फादर के टाइम में ये दीवार बनाई थी? तो वो बोलता है कि हाँ हाँ, वो मैं ही हूँ और मैंने ही दीवार बनाई थी। वट काइंड ऑफ अ वॉल इज़ दिस दैट यू बिल्ट? अब वो राजा उससे पूछता है कि किस तरीके की दीवार ये थी जो तुमने बनाई थी? इट हैज़ फॉलन ऑन अ पुअर मैन एंड किल्ड हिम। और वो दीवार जो तुमने बनाई थी, वो तुमने पता नहीं कैसे बनाई थी कि वो अब गिर गई है, और वो एक गरीब और लाचार आदमी के ऊपर गिर गई वो दीवार, और वो मर गया उसकी वजह से। यू हैव मर्डर्ड हिम, और तुमने उसका मर्डर किया है। वी हैव टू पनिश यू बाय डेथ, और तुम्हें इसके लिए मौत की सज़ा सुनाई जाएगी। बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन मीन्स पनिशमेंट। इससे पहले कि किंग जो है, जो राजा है, वो पनिशमेंट के लिए ऑर्डर करता अपने सोल्जर्स को, द पुअर ब्रिकलेयर प्लीडेड। अब पुअर जो ब्रिकलेयर है उसने प्लीड किया, मतलब रिक्वेस्ट किया, प्लीज़ लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर्स। अब वो बोलता है कि प्लीज़ एक बार आप मुझे सुन तो लीजिए, इससे पहले कि आप अपना ऑर्डर सुनाइए, आप अपने ऑर्डर को सुनाइए। इट्स ट्रू, आई बिल्ट दिस वॉल एंड इट वॉज नो गुड। अब वो बोलता है कि हाँ हाँ, ये बिल्कुल सही है कि मैंने वो दीवार बनाई थी जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, बट दैट वॉज बिकॉज माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट। पर वो आगे बोलता है वो दीवार अच्छी इसलिए नहीं मैं बना पाया था क्योंकि मेरा दिमाग उसमें लगा नहीं था, मतलब मेरा दिमाग उस टाइम किसी और चीज़ पे था, उस दीवार को बनाने में नहीं। I remember very well a dancing girl who was going up and down that street all day with her anklets jingling, and I couldn't keep my eyes or my mind on the wall I was building, right? So अब वो कहता है कि हाँ, मुझे अच्छे से याद है कि एक डांसिंग गर्ल, ठीक है, डांसिंग गर्ल मतलब अ गर्ल हु वॉज जस्ट वॉकिंग ऑन दैट पर्टिकुलर स्ट्रीट ऑन दैट पर्टिकुलर डे व्हेन दिस पर्सन वॉज बिल्डिंग द वॉल, राइट। सो वो बोलता है कि हाँ हाँ, मुझे अच्छे से याद है कि एक लड़की थी जो कि बार बार आ जा रही थी उस रास्ते से, ठीक है। हाँ, मतलब उस सारे दिन, मतलब जिस दिन मैं दीवार बना रहा था मतलब वो पूरे दिन वो लड़की बार बार मतलब अप एंड डाउन कर रही थी, मतलब आ जा रही थी, ठीक है, उस रास्ते पे, विद हर एंकलेट्स जिंगलिंग। एंकलेट्स मतलब, एंकलेट यहाँ पे मतलब है पायल, जो कि, और जिंगलिंग मीन्स अ काइंड ऑफ अ साउंड, राइट। सो एंकलेट जिंगलिंग, ठीक है। और इस वजह से जो डांसिंग गर्ल थी वो इस तरीके से चल रही थी कि उसकी पायल की जो छनक थी, ठीक है, वो मुझे बिल्कुल अच्छे से सुनाई दे रही थी, और इस वजह से मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया था, जिसकी वजह से मैं पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाया उस वॉल को बनाने में। एंड आई couldn't कीप माई आइज़ ऑन और माई माइंड ऑन द वॉल आई वॉज बिल्डिंग, राइट। और जो दीवार मैं बना रहा था उस पर मैं पूरा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाया। यू मस्ट गेट दैट डांसिंग गर्ल, आई नो वेयर शी लिव्स। और वो बोलता है कि आपको फिर उस डांसिंग गर्ल, मतलब उस डांसिंग लड़की को पकड़ना चाहिए जो पायल पहन के उस दिन पूरे रास्ते पे दिन भर आया जाया कर रही थी, मतलब आ जा रही थी। आप उसे पकड़िए और मुझे पता है कि वो कहाँ रहती है।
यू आर राइट, द केस डीपेंड्स। अब जो किंग है वो बोलता है उस पुअर ब्रिकलेयर से कि हाँ हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, और केस क्या हो जाता है, डीपेंस हो जाता है, मीन्स कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अब और भी कॉम्प्लिकेटेड हो गया था यहाँ पे केस। वी मस्ट लुक इनटू इट। अब वो बोलता है राजा कि हाँ हम इसकी तहकीकात, इस केस की तहकीकात अच्छे से करेंगे। इट इज़ नॉट ईजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केस, और ये बहुत ईजी नहीं है हमारे लिए कि हम इस इतने कॉम्प्लिकेटेड केस को अच्छे जज कर पाएँ। हमें और इस पे स्टडी करनी होगी। लेट्स गेट दैट डांसर वेर एवर शी इज़। और अब वो बोलता है कि हमें उस लड़की को यहाँ पे लाना पड़ेगा, वो जहाँ कहीं भी हो। द डांसिंग गर्ल नाउ एन ओल्ड वेमेन केम ट्रेम्बलिंग टू द कोर्ट। अब वो डांसिंग गर्ल अब जो है बहुत बूढ़ी हो चुकी थी और काँप रही थी, और वो काँपते काँपते वहाँ पे कोर्ट में उसके राजा के सामने आती है। ट्रेम्बलिंग मीन शेकिंग। Did you walk up and down that street many years ago while this poor man was building a wall? Did you see him? तो अब वो राजा उस बूढ़ी औरत से पूछता है, जो कि डांसिंग गर्ल थी, उससे पूछता है कि क्या तुम्हें याद है, बहुत साल पहले की बात है कि तुम एक रास्ते से आ जा रही थी बहुत ज़्यादा बार, जब ये आदमी एक दीवार बना रहा था। डिड यू सी हिम? क्या तुमने इसे देखा था उस टाइम पे? येस माई लॉर्ड, आई रिमेंबर इट वेरी वेल। अब वो बूढ़ी औरत बोलती है कि हाँ हाँ मुझे याद है, अच्छी तरीके से मुझे याद है। सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन विद योर एंकलेट जिंगलिंग, यू वर यंग एंड यू डिस्ट्रैक्टेड हिम, राइट। सो अब वो कहता है कि इसका मतलब है कि तुम जब उस रास्ते पे बार बार आ जा रही थी और तुम्हारी पायल भी बज रही थी, उसमें से साउंड आ रहा था, आवाज़ आ रही थी, तो तुम उस टाइम पे यंग थी और तुमने इस आदमी को, इस ब्रिकलेयर को क्या किया, डिस्ट्रैक्ट किया, जिसकी वजह से इसने इतनी ख़राब दीवार बनाई, या बहुत वीक दीवार बनाई, राइट। सो लेट प्रोसीड फर्दर क्लास। इट हैज़ फॉलन ऑन अ पुअर बर्गलर एंड किल्ड हिम। और जिसकी वजह से ये दीवार इतनी कमज़ोर थी कि वो बेचारे पुअर बर्गलर, मतलब इस चोर पे गिर गई, जो कि बहुत बेसहारा और गरीब चोर था, उस पे गिर गई और उसे और इसकी वजह से उसकी मौत हो गई। यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन, वी ऑल हैव टू यू ऑल हैव टू बी पनिश्ड। और वो बोलता है कि तुमने एक इनोसेंट आदमी को मारा है, ठीक है, तो इस वजह से तुम सारे लोगों को पनिश किया जाएगा। शी थॉट फॉर अ मिनट एंड सेड। फिर उसने लगभग 2 मिनट सोचा या थोड़ी देर सोचा, और फिर उससे बोलती है, किससे, किंग से, माई लॉर्ड वेट, आई नो नाउ वाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट, राइट। सो वो बोलती है, माई लॉर्ड वेट, आई नो नाउ वाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट। तब वो कहती है कि प्लीज़ वेट, आप वेट करिए, और मुझे याद आ गया कि मैं उस दिन क्यों बार बार उस रास्ते से आ जा रही थी। आई हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ टू मेक सम ज्वेलरी फॉर मी। अब वो बताती है कि उस टाइम पे, उस दिन या उस दिन के पहले पहले मैंने कुछ सोना दिया था, किसको, गोल्ड स्मिथ को, मतलब जो ज्वेलरी बनाने वाला होता है, उसको मैंने कुछ सोना दिया था, ठीक है, ज्वेलरी बनाने के लिए। ही वॉज़ अ लेज़ी स्काउंड्रल, राइट। और वो बहुत ज़्यादा लेज़ी पर्सन था। ही मेड सो मैनी एक्सक्यूजेज, उसने बहुत सारे एक्सक्यूजेज बनाए। सेड ही वुड गिव इट नाउ एंड ही वुड गिव इट देन। और वो बार बार, हमेशा जब भी मैं आया जाया करती थी, वो बार बार यही बोलता था कि मैं आज दे दूँगा, कल दे दूँगा, इस दिन दे दूँगा, उस दिन दे दूँगा, ऐसे करके मुझे वो टाल रहा था। एंड सो ऑल एंड सो एंड सो ऑन ऑल डे, राइट। और सारा दिन ऐसे मुझे वो टाला करता था। ही मेड मी वॉक अप एंड डाउन ऑन हिज हाउस टू हिज हाउस अ डजन टाइम। और इस वजह से दर्जनों बार मुझे उसके घर के चक्कर लगाने पड़े। दैट वॉज वेन दिस ब्रिकलेयर सॉ मी। और तभी की बात है जब इस ब्रिकलेयर ने मुझे देखा था। इट्स नॉट माई फॉल्ट माई लॉर्ड, इट्स द डैम्ड गोल्डस्मिथ फॉल्ट, राइट। तो वो मेरी गलती नहीं है कि मैं उस रास्ते पे बार बार आ जा रही थी, पर गलती उसकी है जिसने मुझे बार बार उस रास्ते पे आने जाने के लिए मजबूर किया था। और वो कौन था? वो गोल्डस्मिथ। सो लेट प्रोसीड फर्दर क्लास। पुअर थिंग, शी इज़ एब्सोल्युटली राइट, राइट। अब राजा कहता है कि सच में बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ भी, क्योंकि तुम्हें बार बार आना जाना पड़ा, और तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। थॉट द किंग, ये किंग ने ऐसा सोचा।
वेइंग द एविडेंस मतलब सारी चीज़ों को सारे एविडेंस को नाप तोल करने के बाद वी हैव गॉट द रियल कल्प्रिट एट लास्ट। कल्प्रिट मीन्स द रॉन्ग डूअर, राइट। अब राजा कहता है कि हमें जो कल्प्रिट है मतलब जो एक्यूज्ड है वो मिल गया है। गेट द गोल्ड स्मिथ वेर एवर ही इज़ हाइडिंग। अब वो अपने सोल्जर्स को बोलता है कि जाके उस गोल्ड स्मिथ को खींच के यहाँ पर लेके आओ जहाँ भी वो छुपा है। एट वंस राइट, और तुरंत एक बार में उसको यहाँ पे खींच के लेके आओ। द किंग्स वैलिप्स मीन सोल्जर्स सर्च फॉर द गोल्ड स्मिथ। अब जो किंग के जो सोल्जर्स थे उन्होंने गोल्ड स्मिथ को सर्च किया, मतलब सारी जगह ढूंढा। हु वॉज हाइडिंग इन अ कॉर्नर ऑफ ए शॉप, जो कि हाइड हो रहा था, जो कि मतलब छुप रहा था अपने दुकान के किसी कोने में। When he heard the accusation against him, he had his own story to tell. और जब उसने अपना accusation सुना, accusation means claims, जो चार्जेस उस पर लगे थे, जब उसने सुना कि मेरे पे ये क्लेम लगा हुआ है या ये चार्ज लगा हुआ है, तो उसके पास अपनी खुद की स्टोरी थी बताने के लिए। जैसे सबने अपनी अपनी स्टोरी उस राजा के सामने बताई कि इस वजह से हुआ, इस वजह से हुआ, उस वजह से हुआ, तो वैसे इसके पास भी, इस गोल्डस्मिथ के पास भी अपनी एक स्टोरी थी बताने के लिए, जो कि राजा को वो बताना चाह रहा था। माई लॉर्ड ही सेड, उसने कहा, आई एम अ पुअर गोल्डस्मिथ, मैं बहुत गरीब गोल्डस्मिथ हूँ, ठीक है। इट्स ट्रू आई मेड दिस डांसर कम मैनी टाइम्स टू माई डोर। ये बिल्कुल सही है कि मैंने इस डांसर को कई बार अपने दरवाजे पे या घर पे आने जाने के लिए मजबूर किया था उस टाइम पे। आई गेव हर एक्सक्यूजेज बिकॉज आई couldn't फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी बिफोर आई फिनिश द रिच मर्चेंट्स ऑर्डर। क्योंकि, और उसकी वजह ये थी, मैं बार बार इसको टाल क्यों रहा था, क्योंकि जो इसने ज्वेलरी बनाने के लिए मुझे दी थी वो टाइम पे मैं बना नहीं पाया था, क्योंकि मैं उस टाइम पे एक रिच मर्चेंट का ऑर्डर बना रहा था। मतलब रिच मर्चेंट एक अमीर बिजनेसमैन ने मुझे, उस गांव के एक अमीर बिजनेसमैन ने मुझे एक ऑर्डर दिया था ज्वेलरी बनाने का, जो कि मैं उसी के ऑर्डर में बिज़ी था। इतना ज़्यादा बिज़ी था कि मैं इस लड़की की ज्वेलरी को टाइम पे बना नहीं पाया था। इस वजह से मैं इसको बार बार एक्सक्यूज़ेस दे रहा था और ये बार बार इसको आना जाना पड़ रहा था। दे हैड अ वेडिंग कमिंग एंड दे वुडेंट वेट, राइट। अब वो बताता है क्यों मैं मर्चेंट के ऑर्डर को बनाने में बहुत ज़्यादा बिजी था, क्योंकि उनके घर में शादी थी और वो वेट नहीं करना चाह रहे थे। यू नो हाउ इम्पेशेंट रिच मैन आर। तो अब वो बोलता है कि आपको खुद ही पता है कि जो रिच मैन होते हैं, मतलब जो अमीर आदमी होते हैं, वो कितना इम्पेशेंट होते हैं। मतलब उनमें धैर्य नाम का सब्र या धैर्य नाम की चीज़ नहीं होती है। वो हमेशा हर काम जल्दी से करवाना या करना चाहते हैं। तो इस वजह से मैं ये बिज़ी था उस रिच मर्चेंट की ऑर्डर बनाने में, और इसी वजह से मैं इस लड़की के ज्वेलरी को टाइमली बनाकर नहीं दे पाया, और जिसकी वजह से इसको बार बार आना जाना पड़ा। लेट प्रोसीड फर्दर क्लास। Who is this rich merchant who kept you from finishing this poor woman's jewelry? Made her walk up and down, which distracted this bricklayer, which made a mess of his wall, right? So अब वो राजा बोलता है कि कौन है ये रिच मर्चेंट जिसने तुम्हें इस जो लेडी है, जो औरत है, उसकी ज्वेलरी बनाने से तुम्हें रोक रखा था उस टाइम पे, ठीक है। और इस बेचारी को कई बार आना पड़ा, उस रास्ते से आना जाना पड़ा, और उसी रास्ते पे जो कि ये ब्रिकलेयर अपना दीवार बना रहा था और वो डिस्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। और इसी वजह से क्या हो गई, दीवार तो बन गई, पर किस फेस में या किस रूप में बन गई, वो एक प्रॉब्लम के रूप में दीवार खड़ी हो गई थी, और जो कि आज उस इंसान के ऊपर गिर गई, जो कि उस दीवार के गिरने की वजह से क्या हो गया, मारा गया है, राइट। विच हैज़ नाउ फॉलन ऑन एन इनोसेंट मैन एंड किल्ड हिम, राइट। और जो कि अब क्योंकि वो दीवार इतनी बड़ी प्रॉब्लम बन गई थी कि अब के टाइम में, मतलब आज के टाइम में या अभी, ये दीवार क्या हो गई, इस इनोसेंट आदमी के ऊपर गिर गई और वो मर गया। कैन यू नेम हिम, क्या तुम उसका नाम बता सकते हो? राजा ने पूछा, क्या तुम उस रिच मर्चेंट का नाम बता सकते हो? द गोल्ड स्मिथ named the merchant, and he was none other than the original owner of the house whose wall had fallen.
अब जब गोल्डस्मिथ ने उस मर्चेंट का नाम बताया तो वो कोई और नहीं था बल्कि जिस जिस घर की दीवार जिस घर की दीवार गिरी थी उसी का रियल ओनर था, मतलब उसी का ओनर था वो। जिस घर की दीवार गिरी थी उस आदमी के ऊपर, उस चोर के ऊपर, उसी घर के ओनर का नाम गोल्डस्मिथ ने बताया। नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्कल थॉट द किंग बैक टू द मर्चेंट। अब जो किंग था वो कहता है कि अब पूरा का पूरा जो जस्टिस है, मतलब जो इंसाफ है, वो घूम फिर के एकदम सही जगह पे आ चुका है। अब वो मर्चेंट की तरफ देखता है। व्हेन ही वॉज रूडली समन्ड बैक टू द कोर्ट, राइट। और फिर से उसी मर्चेंट को बुलाया जाता है जो जिसको पहली बार बुलाया गया था, सबसे पहली बार, ठीक है। सबसे पहली बार उसी मर्चेंट को बुलाया गया था, ठीक है, जिसको कंपनसेशन के लिए बोला जा रहा था, ठीक है। तो उसी मर्चेंट को फिर से बुलाया गया। व्हेन ही वॉज रूडली समन्ड मीन्स टू कॉल, टू बी प्रेजेंट, राइट। तो रूडली उसे बुलाया गया बैक टू द कोर्ट। ही अराइव्ड क्राइंग, और वो रोते रोते उस राजा के सामने हाजिर होता है। इट वॉज इन मी बट माई फादर हु ऑर्डर्ड द ज्वेलरी, ही इज़ डेड, आई एम इनोसेंट। अब वो बोलता है कि माई लॉर्ड, जिसने भी इस ज्वेलरी का ऑर्डर दिया था उस टाइम पे इस गोल्डस्मिथ को, वो मैं नहीं बल्कि मेरे फादर थे, और जो कि अब मर चुके हैं। पर इन सब से मेरा कोई लेना देना नहीं है, इसलिए मैं क्या हूँ, मैं निर्दोष हूँ, आई एम इनोसेंट। लेट प्रोसीड फॉर द क्लास। बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर एंड रूल्ड डिसिसिवली। डिसिसिवली मीन्स क्विकली। पर किंग ने उस टाइम पे कंसल्ट किया अपने मिनिस्टर से और तुरंत के तुरंत डिसीजन ले लिया कि हमें किसको पनिश करना है, उस मर्चेंट को, जो कि अपने जिसके फादर के टाइम पे वॉल बनाई गई थी और वो वॉल गिर गई थी। इट्स ट्रू योर फादर इज़ द ट्रू मर्डरर, राइट। अब राजा बोलता है कि ये बिल्कुल सच्ची बात है कि तुम्हारा जो फादर था, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहा या नहीं है, वही मर्डरर है। ही इज़ डेड बट समबडी मस्ट बी पनिश्ड इन हिज प्लेस। और हालांकि तुम्हारे फादर तो मर चुके हैं, पर कोई ना कोई किसी ना किसी को तो हमें क्या करना पड़ेगा, पनिश करना ही पड़ेगा उसकी जगह पे। सो यू हैव इनहेरिटेड everything from that criminal father of yours, his riches as well as his sins. Inherited means gained, right? जैसे एक न्यूबॉर्न बेबी कुछ कई सारे क्वालिटीज़ इनहेरिट करता है जब वो एक बच्चा छोटा पैदा होता है अपने मम्मी पापा से, तो वैसे ही वो बोलता है कि तुमने बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, अब इनहेरिट किया है, मतलब गेन किया है अपने क्रिमिनल फादर से। उस मर्चेंट की तरफ देखकर राजा बोलता है कि तुम्हारे जो फादर मर चुका है उस फादर से तुमने बहुत सारी चीज़ें गेन की है, ठीक है, जो कि तुम्हारा फादर क्रिमिनल था, ठीक है, उससे बहुत चीज़ें तुमने गेन की है। अभी जो तुम इतने अमीर हो वो सारी चीज़ें भी, और तुम्हारे गुनाह भी तुमने उसी फादर से गेन किया है। तो ये इस वजह से तुम्हें ही हम पनिश करेंगे। आई न्यू एट वंस even when I first set eyes on you, that you were at the root of this horrible crime. You must die. और राजा आगे बोलता है कि मैंने तो तुम्हें पहली नज़र में ही पहचान लिया था कि इस हॉरिबल क्राइम का जो रूट है, जो बेस है, वो तुम ही हो, मतलब तुम ही सबसे बड़े रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो इस क्राइम का, और तुम्हें अब मरना होगा। लेट प्रोसीड फॉर द क्लास। एज ही ऑर्डर्ड अ न्यू स्टेक टू बी मेड। स्टेक मतलब अ स्टिक विद अ मेटल एट वन एंड, ठीक है, एक डंडी होती है या एक बड़ा सा डंडा होता है, उसके एंड पे क्या लगा रहता है, मेटल, मतलब शार्प मेटल लगा होता है, जिसे आप भाला कहते हो हिंदी में। एंड ही ऑर्डर्ड अ न्यू स्टेक, उसने एक न्यू स्टेक ऑर्डर की बनाने के लिए, रेडी फॉर द एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन मीन्स पनिशमेंट के लिए वो अपने सोल्जर से बोलता है कि एक नया भाला बनाओ। As the servant sharpened the stake and got it ready for the final impaling of the criminal, it occurred to the minister that the rich merchant was somehow too thin to be properly executed on the stake. Right? सो जब सर्वेंट ने, उनके जो राजा के सारे नौकर थे, उन्होंने जब स्टेक को बना लिया पूरी तरीके से, ठीक है, और वो स्टेक रेडी हो गया था उस क्रिमिनल को सज़ा देने के लिए। इम्पेलिंग मतलब टू स्टैब, मतलब
किसी चीज़ को बॉडी के अंदर घुसाना, ठीक है। तो जब वो स्टेक रेडी हो गया था, वो भाला रेडी था और सिर्फ उसको अंदर उस मर्चेंट के घुसाना था और इसकी वजह से वो उसकी क्या हो जाती, उसकी मौत हो जाती, ठीक है। तभी इट अकर टू द मिनिस्टर दैट द रिच मर्चेंट वॉज समहाउ टू थिन, ठीक है। तभी मतलब भाला तैयार था, क्रिमिनल भी सामने था, बस मारने की देरी थी कि तभी उसके मिनिस्टर्स को, मतलब जो राजा के मिनिस्टर्स थे, उनके उनके दिमाग में एक बात आती है कि जो मर्चेंट है, जो अभी जिसको हम पनिशमेंट देने जा रहे हैं, वो बहुत थिन है, मतलब बहुत ज़्यादा पतला है, ठीक है। और इस वजह से उस पर ये भाला, हम भाले का यूज़ नहीं कर सकते, मतलब उसको भाले से मार नहीं सकते हैं, ठीक है। ही अपील्ड टू द किंग्स कॉमन सेंस, द किंग टू वरीड अबाउट इट, ठीक है। अपील्ड मीन्स टोल्ड। और जब ये बात क्लिक हुई मिनिस्टर के दिमाग में, तो यही चीज़ उसने उसका एक मिनिस्टर ने यही बात, सारी बात कि वो बहुत कमज़ोर है, जो मर्चेंट है वो बहुत कमज़ोर है और इस स्टेक के लिए वो प्रॉपर फिट नहीं है, तो इस स्टेक पनिशमेंट के लिए वो प्रॉपरली फिट नहीं है। तो यही बात जब मिनिस्टर के दिमाग में आई, तो सेम चीज़ उसने उस किंग को भी बताया, उसने किंग को भी सारी बात बताई। द किंग टू वरीड अबाउट इट, और किंग जो था उसको भी लगा कि हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि जो मर्चेंट है वो बहुत पतला है और हम उसे स्टेक वाली पनिशमेंट नहीं दे सकते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पतला था। What shall we do? He said. When suddenly it struck him that all they need to do was to find a man fat enough to fit the stake. राइट, अब राजा बोलता है कि फिर हम क्या करें, अब आगे क्या होगा, इस मर्चेंट को तो हमें वो सज़ा देनी ही देनी है, पर अब यहाँ पे इस वजह से हम रोक नहीं सकते हैं, तो हम क्या करें, हम आगे क्या कर सकते हैं या अभी क्या कर सकते हैं। When suddenly it struck him that all they needed to do was to find a man fat enough to fit the stake. तो तभी उसके दिमाग में, उस राजा के दिमाग में एक आइडिया क्लिक करता है कि ठीक है, अगर ये मर्चेंट जो है वो पतला ही सही या पतला ही है तो कोई दिक्कत नहीं, हमें इसको छोड़ करके एक ऐसे आदमी को अपने राज्य से या साम्राज्य से एक ऐसे आदमी को ढूंढ निकालना है जो कि क्या हो, बहुत ज़्यादा मोटा तकड़ा हो, जिसमें कि ये जो स्टेक है, मतलब जो भाला है, वो आराम से उसको आराम से फिट, मतलब वो भाले से उसकी मौत हो जाए और उसको कोई दिक्कत भी ना हो, ठीक है। सो नाउ दे वर सर्चिंग अबाउट अ मैन हु वाज फैट, राइट। सो ऑल दे नीडेड टू डू वाज टू फाइंड अ मैन फैट इनफ टू फिट द स्टेक. द सर्वेंट्स वर इमीडिएटली सेंट ऑल ओवर द टाउन लुकिंग फॉर अ मैन हु वुड फिट द स्टेक. अब जो सर्वेंट थे, जो सोल्जर्स थे, उनको तुरंत हर एक कोने में, उस साम्राज्य या राज्य के कोने में भेज दिया गया, किसको ढूंढ के लाने के लिए एक ऐसे आदमी को जो कि मोटा हो और उस पर वो भाले का असर हो जाए और मतलब उसकी मौत भी हो जाए, ठीक है, और उसको ज़्यादा दर्द भी ना हो. And their eyes fell on the disciple who had fattened himself for months on bananas and rice and wheat and ghee. और तभी उनकी नज़र किस पे पड़ती है उस डिसाइपल पे, मतलब जो डिसाइपल, जो चेला था किसका, उस गुरु का, जो शुरू में इस किंगडम में आए हुए थे, पर गुरु तो चला गया था, पर वो डिसाइपल यहाँ पे रुक गया था. तो उसी डिसाइपल पे इनकी नज़र पड़ती है जो कि इतना खा के, मतलब बहुत सारा खा पी के, बनाना हो गया, राइस हो गया, वीट हो गया, घी हो गया, क्योंकि सारी चीज़ें क्या थी, सस्ती मिल रही थी शुरू से ही, और ये सब सारी चीज़ें खा के वो एकदम फैटी हो गया था, मतलब बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था, राइट. So homework students, you all have to write down the word meanings in the classwork copy and meanings in the book, right. Read this chapter a little further as well, right. So what you have to do is you have to write down the word meanings in the classwork copy and the meanings in the book, right, like I have written. Then you have to read the chapter a little further, so in the next video we can while studying or while reading, you can understand the story more better, right. So students, in our next class we will continue with the same chapter, right. We will continue with the same chapter. Till then, take care and stay safe. Thank you, class.